This video recovers the topic irrecoverable debts and provision for doubtful debts. Irrecoverable debts are those debts which became uncollectible. वो debts जो हमें collect नहीं होंगे, they will be termed as irrecoverable debts. Because normally business are having sales on credit basis, sales credit basis पे होंगी, पैसे आने वाले टाइम में मिलेंगे, and during that period कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से that person is unable to pay, that is known as irrecoverable debts. अब बिजनेस में irrecoverable debts होना एक नॉर्मल चीज़ है. So what do? We create a provision for doubtful debt. We create provision for doubtful debt. तो provision for doubtful debt किसके लिए बनाएंगे? We provide for the expected doubtful debts in the books of accounts. वो हमारे expected doubtful debts जो हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में होंगे, हम उनके लिए पहले से कुछ प्रोविज़न बना के रख लेंगे. हम उनके लिए पहले से कुछ प्रोविज़न बना के रख लेंगे. दैट विल बी नोन एज प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. इसी तरह प्रोविज़न इज़ क्रिएटेड अंडर विच कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, उसमें से प्रोविज़न किस कॉन्सेप्ट के अंदर बनेगी? प्रोविज़न विल बी क्रिएटेड अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. अंडर prudence concept. Prudence concept क्या कहता है? There are two aspects of the prudence concept. Number one is assets should be understated rather than being overstated. कि assets को हमने कम करके लिखना है, हमने उसको ज़्यादा नहीं करना. We have to understate the asset rather than being overstating the assets. For example, we are having our trade receivables of 100 and we are expecting that we won't receive 5. हमारे ट्रेड रिसीवर्स है 100 के और वी एक्सपेक्ट कि वी वोंट रिसीव 5. सो हाउ मच वी गोइंग टू रिसीव? वी गोइंग टू रिसीव 95. So which value will be going to record as trade receivables in the statement of financial position? 100 or 95? So we're going to record our trade receivables at 95. We're going to understate the asset rather than being overstating the asset. We will understate rather than being overstate. Second aspect of the prudence concept is foreseeable expenses should be accounted for. वो एक्सपेंसेस जो हम फोर्सी कर रहे हैं कि होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में हो जाएंगे, हम उनको पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे. फोर्सी करेंगे. इफ़ देर इज़ एनी एक्सपेंस, हम उसको पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे. लेकिन इफ़ देर इज़ एनी फोर्सिएबल इनकम, वी विल ओनली रिकॉर्ड व्हेन इट एक्चुअली हैपन्स. अगर एक्सपेंस हमें डाउट हो रहा है कि आने वाले टाइम में हो जाएगा, हम उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है. लेकिन अगर इनकम हमें एक्सपेक्टेड है कि होने वाली है, हम उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली हो जाएगी. There are two types of provision. One is specific provision and number two is general provision. So general provision is a provision which is created for overall trade receivables. General provision is provision which is created for overall trade receivables, and specific provision is created for the people who are for a specific person or a specific class of trade receivables. फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं या चंद ऐसे कस्टमर्स जिनको हमने बहुत ज़्यादा क्रेडिट सेल्स कर दी हुई हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा कर दी हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा कर दी हुई हैं. सो वी माइट क्रिएट अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर दैट number of people. So that will be specific provision. What are the points to be considered while calculating provision for doubtful debts? हमने provision create करनी है. अब how much provision we have to create? How much provision we have to create? How much percentage or how much amount we have to calculate? So we have to consider following points. Number one, past accounting records. Past accounting records. पिछले सालों में क्या होता रहा है? पिछले सालों में क्या होता रहा है? Whatever we have been happening in the past years, कुछ इस तरह का future period में भी हो रहा होगा. Number two is current economic condition. Current economic condition या current economic climate means if our economic condition is like हमारे पास boom situation चल रही है economy में, हमारे पास इकोनॉमी में बूम सिचुएशन चल रही है, तो हमारे पास जो इररिकवरेबल डेट्स की अमाउंट है वो कम होगी, बिकॉज एवरीबडी इज़ हैविंग अ गुड सिचुएशन इन द बिजनेस. लेकिन अगर यही रिसेशन चल रहा है, इफ़ इट इज़ रिसेशन, देन इररिकवरेबल डेट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी. ठीक. देन नंबर थर्ड पॉइंट इज एजिंग स्केड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स. एजिंग स्केड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स दोज डेट्स जो जितने पुराने होते जाएंगे उतना ही हमारे लिए डाउटफुल होते जाएंगे. जो डेट जितने पुराने होते जाएंगे उतना ही हमारे लिए डाउटफुल होते जाएंगे. So these are the 3 points to be considered while calculating provision for doubtful debts. Now we come to entries. What are the double entry transactions happening in? We have to record in
irrecoverable debts. The most required or most asked transaction which is asked in papers, past papers और MCQs में पूछी जाती है, that is writing off irrecoverable debts from trade receivables. के when you have to write off irrecoverable debts from trade receivables, उसकी क्या ट्रांजैक्शन है, पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा पूछी गई है. तो irrecoverable debts को डेबिट करेंगे एंड ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट करेंगे. इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे एंड ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट करेंगे. Then if we have to write off the irrecoverable debt as an expense in income statement, write off irrecoverable debt as an expense in income statement, then we're going to record income statement on the debit side and irrecoverable debts on the credit side. हम irrecoverable debts को income statement में as an expense transfer कर देंगे, as an expense transfer कर देंगे. Third transaction is how you are going to create a provision for doubtful debt. So creating a provision for doubtful debt, it will be recording income statement को डेबिट करेंगे and provision for irrecoverable debts को क्रेडिट करेंगे. income statement को डेबिट करेंगे and provision for irrecoverable debts को क्रेडिट करेंगे. Increase in provision for irrecoverable debts. If we have to increase the provision for irrecoverable debts, then we're going to record income statement on the debit side and provision for doubtful debt, irrecoverable debts on the credit side. याद रखना है, जब भी हमने इनकम स्टेटमेंट को एज एन एक्सपेंस बनाना है, जब भी हमने किसी चीज़ को इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस बनाना है, वी गोना रिकॉर्ड इनकम स्टेटमेंट ऑन द डेबिट साइड बिकॉज एक्सपेंसेस आर डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस आर डेबिट. अगर हमने इनकम स्टेटमेंट को में एक्सपेंस बनाना है किसी को, वी गोना रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड एक्सपेंस. नंबर 5th ट्रांजैक्शन, इफ यू वांट टू डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डिक्रीज करना है तो फिर क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इररिकवरेबल डेट्स विल बी डेबिटेड एंड इनकम स्टेटमेंट विल बी क्रेडिटेड, एंड इनकम स्टेटमेंट विल बी क्रेडिटेड. अभी जैसा मैंने बताया कि जब भी हमने किसी चीज़ को इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस लिखना है तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे. अगर किसी इनकम स्टेटमेंट में किसी चीज़ को इनकम के तौर पर लिखना है तो वो हम उसको इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. इनकम स्टेटमेंट को विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, हम इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. देन वी मूव ऑन टू द टी अकाउंट्स. अब इररिकवरेबल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट कैसे बनेंगे हमारे पास. इररिकवरेबल डेट्स का अकाउंट कैसे बनेगा, इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट अगर हमें नाम पता है तो विल गोना राइट द नेम ऑन द डेबिट साइड, अदरवाइज वेरियस ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देंगे, अदरवाइज वेरियस ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देंगे साल की लास्ट डेट के ऊपर. इसी तरह इनकम स्टेटमेंट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड एंड वी विल चार्ज दैट एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट. नाम पता है तो नाम लिखेंगे, वरना इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कर देंगे साथ उसके. देन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाएंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का प्रोसीजर है, इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी. कैसे बनाएंगे इसका अकाउंट, ब्रॉट डाउन स्टेप नंबर 1, ब्रॉट डाउन इज योर स्टेप नंबर 1, इट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड. देन द प्रोविजन विच गोना कैलकुलेट, जो हम प्रोविजन खुद से कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास कैरी डाउन प्रोविजन आएगी एंड इट विल बी स्टेप नंबर 2, एंड इट विल बी स्टेप नंबर 2. ब्रॉट डाउन स्टेप नंबर 1, कैरी डाउन स्टेप नंबर 2. वैल्यूज़ लिखेंगे, अकाउंट को बैलेंस करेंगे. अगर हमारे पास बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया तो इट विल बी एन इनकम स्टेटमेंट स्टेप 3 एक्सपेंस. अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया तो इट विल बी एन एक्सपेंस, और अगर हमारे पास डेबिट साइड पे बैलेंस आया, इनकम स्टेटमेंट स्टेप नंबर 3 है ये भी, इट विल बी प्रॉफिट. So what we're going to do, we write step number 1 brought down on the credit side, then carry down step number 2 on the debit side, जो हम प्रोविजन खुद से कैलकुलेट करेंगे. अकाउंट को बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया तो इट विल बी एन एक्सपेंस, अगर बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड पे आया तो इट विल बी अ प्रॉफिट. देन वी मूव ऑन टू इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स. इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में क्या होगा, वो भी जो भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे इररिकवरेबल डेट्स की और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, वो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में कैसे रिफ्लेक्ट होंगी. नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास. ग्रॉस प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे इफ़ इट इज़ रिडक्शन इन प्रोविजन, अगर प्रोविजन कम हो रही है, रिडक्शन इन प्रोविजन तो वो ऐड हो जाएगी, और अगर इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड हैं, इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड हैं वो भी ऐड हो जाते हैं.
अभी मैं बताता हूँ कि इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। देन एक्सपेंसेस में माइनस करेंगे, क्या क्या चीज़ माइनस कर देंगे, इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ, इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ हैं वो भी माइनस हो जाएंगे और एज एन एक्सपेंस आएंगे। और इंक्रीज इन प्रोविजन, अगर इंक्रीज इन प्रोविजन आ रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में, दैट विल बी ट्रांसफर्ड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसका क्या एक्सट्रैक्ट्स इसमें क्या बनेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स जो भी अमाउंट होगी ट्रेड रिसीवेबल्स की वो लिखेंगे। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इररिकवरेबल डेट्स टू बी रिटन ऑफ, इररिकवरेबल डेट्स टू बी रिटन ऑफ वो माइनस करेंगे यहाँ से। फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर प्रोविजन लगाएंगे, वो भी माइनस करेंगे। फिर जो एंड में बच जाएगा वैल्यू दैट विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो ट्रेड रिसीवेबल्स हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रांसफर कर देंगे। अब इररिकवरेबल डेट्स टू बी रिटन ऑफ क्या होते हैं, इररिकवरेबल डेट्स टू बी रिटन ऑफ आर दोज डेट्स विच आर स्टिल इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स, वो डेट जो अभी तक हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूडेड हैं एंड दे हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड, उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स में से। प्रोविजन कैलकुलेट करने से पहले हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोविजन कैलकुलेट करने से पहले हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज इरिकवरेबल डेट मतलब वो नहीं मिलेंगे, तो जब वो पैसे ही नहीं मिलेंगे तो उनके ऊपर प्रोविजन भी नहीं बनाएंगे हम। So irrecoverable debts to be written off will be subtracted from trade receivables before calculating provision. Irrecoverable debts to be written off will be charged as an expense in income statement, और वो जिस तरह normal irrecoverable debts होते हैं उसी तरह उसको as an income, as an expense income statement में charge कर देंगे। एंड बिफोर कैलकुलेटिंग प्रोविजन रिमेंबर दैट कि हमने इररिकवरेबल डेट्स टू बी रिटन ऑफ को हमने बीच में से माइनस करना है ट्रेड रिसीवेबल्स में से, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 10,200 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इररिकवरेबल डेट्स टू बी रिटन ऑफ यानी कि ये भी राइट ऑफ होने हैं, ठीक है। इसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स में से माइनस करेंगे, 10,000 बच जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट्स कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 10,000 पे 5% लगाएंगे तो ये 500 आ जाएगी। तो कैरी डाउन प्रोविजन है 10,000 में से 500 माइनस किया, 9,500 आर लेफ्ट। सो ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी 9,500. So before calculating provision for doubtful debts, you have to subtract irrecoverable debts to be written off, हमने उनको माइनस करना है, then provision calculate करनी है, ठीक है। Then last thing which we have to remember in this theory portion is irrecoverable debts recovered. Irrecoverable debts recovered. Irrecoverable debts recovered are those debts which were previously written off. These are the debts which were previously written off as an expense. हमने उनको पिछले किसी साल में as an expense irrecoverable debt के तौर पे हमने उसको पिछले किसी साल में expense के तौर पे write off कर दिया income statement में। बट द पर्सन द कस्टमर रिटर्न एंड सी सेज कि जी आप मुझसे पैसे ले लें, so that will be termed as irrecoverable debts recovered, that will be termed as irrecoverable debts recovered। और irrecoverable debts recovered जो है वो that will be your income, irrecoverable debts recovered will be your income and it will be transferred to income statement as an income and it will be added in gross profit and it will be added in gross profit। इरिकवरेबल डेट्स का अकाउंट, इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट कैसे बनेगा, विल सिंपली राइट इनकम स्टेटमेंट ऑन द डेबिट साइड एंड बैंक ऑन द क्रेडिट साइड, और इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड सिंपली हमारी इनकम है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू। In the last lecture, I explained irrecoverable debts and provision for doubtful debts. उसकी theory explanation की. Now, with the help of certain examples, I will try to explain how you're going to adjust provision for doubtful debt and irrecoverable debts in the financial statements. Means income statement और statement of financial position में उसको हम कैसे adjust करेंगे, ठीक है। Number one example is how to create a provision. If the question says that create a provision for doubtful debt, if a question says create a provision for doubtful debt, अगर वो create करने को कह रहा है इसका मतलब है brought down। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉड डाउन नहीं है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉड डाउन नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट इट। ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे और वो हमें बताएगा कितनी परसेंटेज प्रोविजन आपने कैलकुलेट करनी है, कितनी परसेंटेज प्रोविजन आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली वी गोना मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाएंगे। अब उसने हमें ब्रॉड डाउन नहीं दिया,
देर इज़ नो ब्रॉड डाउन। अब दैट इज स्टेप नंबर वन, ठीक है। ब्रॉड डाउन इज योर स्टेप नंबर वन एंड कैरी डाउन इज योर स्टेप नंबर टू। अब हम कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड सीबल्स ऑफ 40,000, ट्रेड सीबल्स आर 40,000, विल कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन लगाएंगे 5%, तो 40,000 का 5% आ जाएगा हमारे पास 2,000। अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। 2000, 2000 और शॉर्टर साइड पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 2000। सो अकाउंट को बैलेंस किया हमने। स्टेप नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा 2000। स्टेप नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा 2000। सो स्टेप नंबर 1 इज ब्रॉट डाउन, स्टेप नंबर 2 इज कैरी डाउन द प्रोविजन विच वी हैव टू कैलकुलेट, एंड इनकम स्टेटमेंट हमारे पास स्टेप नंबर 3 आ जाएगी। Now, how we are going to reflect that in income statement and statement of financial position, इसको हम reflect कैसे करेंगे? ठीक है, अब एक्सपेंस बन रहा है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंस बन रहा है, तो इररिकवर इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ रहा है हमारे पास, तो इट विल बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस, और 2000 हमारे पास इसकी वैल्यू चली जाएगी। 2000 हमारे पास इसकी वैल्यू चली जाएगी। हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है 2000, एंड वही हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 चला जाएगा। इट विल बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस। देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास इसका क्या इफेक्ट आएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इफेक्ट आएगा? अब ट्रेड रिसीवेबल्स आर 40,000, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास 40,000 है। देर इज नो इरिकवरेबल डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, इरिकवरेबल डेट टू बी रिटर्न ऑफ कोई भी नहीं है हमारे पास। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो कैरी डाउन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो कैरी डाउन है, इट इज़ 2000। ये देखिए हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो कैरी डाउन है, इट इज़ 2000। तो हम वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरी डाउन यहाँ पे 2000 लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट 2000, और जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स 38,000 चले जाएंगे। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स 38,000 चले जाएंगे। दिस इज व्हेन यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। सेकंड एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या, जब क्वेश्चन कहे मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब वो मेंटेन का कहेगा तो इसका मतलब है ब्रॉड डाउन है हमारे पास। ब्रॉड डाउन ट्रायल बैलेंस में आपको वो देगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का वो ब्रॉड डाउन भी आपको ट्रायल बैलेंस में देगा, बिकॉज वो आपने मेंटेन करने को कह रहा है। ठीक है, तो मेंटेनेंस में क्या होगा, वही स्टेप्स हैं सारे इन्वॉल्व, लेकिन अब इसमें हमारे पास ब्रॉड डाउन आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 इज ब्रॉड डाउन। 1600 उसने हमें प्रोविजन दी, हम 1600 प्रोविजन लिख लेंगे। कैरी डाउन प्रोविजन, द प्रोविजन विच यू गोइंग टू कैलकुलेट, 40,000 हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसके ऊपर 5% प्रोविजन लगाएंगे, इट विल बी 2000। वर्किंग में भी कर सकते हैं, टी अकाउंट में सामने भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, इट विल बी 2000। हम 2000 इसकी कैरी डाउन प्रोविजन बना रहे हैं। ब्रॉड डाउन इज स्टेप नंबर 1, कैरी डाउन इज योर स्टेप नंबर 2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को स्टेप्स में बनाना है, वरना मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो ब्रॉड डाउन भी इज देयर, कैरी डाउन भी आ गया हमारे पास। अब 2000 का बिगर टोटल है, उसको दोनों साइड पे लिखेंगे, और डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 400 आ गया। सो इट इज़ एन इनकम स्टेटमेंट, स्टेप नंबर 3। अगर इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस इधर आएगा तो इट विल बी एन एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट का अगर बैलेंस इधर आएगा तो इट विल बी एन एक्सपेंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स भी देगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉड डाउन भी देगा। सो स्टेप नंबर 1 इज 1600, ब्रॉड डाउन लिखेंगे। कैरी डाउन स्टेप नंबर 2, जो प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर कैरी डाउन। उसको कैलकुलेट किया, अकाउंट को बैलेंस करेंगे, इट बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो इट विल बी एन एक्सपेंस। इसका हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट होगा? इनकम स्टेटमेंट में
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ रहा है हमारे पास 400, तो इनकम स्टेटमेंट में इट विल बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस। ये देखिए इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी 400, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी 400। एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इसके एक्सट्रैक्ट बनेंगे, यानी क्या इफेक्ट होगा इसका। अब ट्रेड रिसीवेबल्स आ 40,000, ट्रेड रिसीवेबल्स वही है हमारे पास 40,000। देर इज नो इरिकवरेबल डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, और कैरी डाउन प्रोविजन हमने निकाली दैट वाज 2,000, तो कैरी डाउन प्रोविजन हमारे पास 2,000 आ रही है। सो रिमेनिंग विल बी गोइंग टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास 38,000 चला जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास 38,000 चला जाएगा। ठीक है, अब क्या रिकैप कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन सेज मेंटेन प्रोविजन, प्रोविजन ट्रेड रिसीवेबल्स भी देगा, ब्रॉड डाउन भी देगा। तो ब्रॉड डाउन लिखा, कैरी डाउन स्टेप नंबर 2 हमने कैलकुलेट किया, अकाउंट को बैलेंस किया, इट इज़ एन एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास जो एक्सपेंस 400 आया, इट विल बी ट्रांसफर्ड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट, इंक्रीज इन प्रोविजन है। एंड देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इंपैक्ट होगा इसका। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास हैं 40,000, क्वेश्चन में गिवन है, इरिकवरेबल डेट टू बी रिटर्न ऑफ कोई नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कैरी डाउन प्रोविजन है, वो जो अकाउंट में हमारे पास कैरी डाउन आ रहा है, ये 2,000, यहाँ से हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे हमेशा। 40,000 माइनस 2,000 इट विल बी 38,000, और 38,000 हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बाद ये हमारे पास बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। थर्ड एग्जांपल में क्या हमारे पास, अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि जी डिक्रीज द प्रोविजन, कहता है जी डिक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन को डिक्रीज करना है। ठीक है, प्रोविजन को डिक्रीज करना है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब कैसे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी गिवन होंगे क्वेश्चन में 40,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉड डाउन भी हमारे पास गिवन होगा। तो बैलेंस जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा प्रोविजन का, दैट विल बी योर ब्रॉड डाउन, दैट विल बी योर ब्रॉड डाउन। ठीक है, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ब्रॉड डाउन इज योर स्टेप नंबर 1। 2600 हमारे पास क्वेश्चन में उसने ब्रॉड डाउन दिया हुआ 2600। कैरी डाउन प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगी, 40,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसके ऊपर 5% प्रोविजन लगाएंगे, इट विल बी 2,000। तो स्टेप नंबर 2, step number 1 was brought down and step number 2 is carried down. So 40,000 multiplied by 5%, it will be 2,000. Now bigger total on both the sides. Now bigger total is 2,600. Bigger total is 2,600. तो 2,600 bigger total दोनों तरफ लिखेंगे on both the sides, and difference will be on the debit side. ये 600 difference इधर आ जाएगा, अगर इधर आया it will be a profit. डिफरेंस अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के बैलेंस का डिफरेंस डेबिट साइड पे आया, तो इट विल बी अ प्रॉफिट, इट विल बी ट्रांसफर्ड एज अ रिडक्शन इन प्रोविजन इन इनकम स्टेटमेंट, इट विल बी ट्रांसफर्ड एज अ रिडक्शन इन प्रोविजन इन इनकम स्टेटमेंट। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाएंगे, ब्रॉड डाउन स्टेप नंबर 1 विच इज 2,600, यहाँ से आ गया हमारे पास 40,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, 5% प्रोविजन लगानी है, 40,000 5% इज 2,000। अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, डिफरेंस विल बी 600। तो ये इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास इसका फैक्ट, अब देखते हैं क्या होगा। सो इनकम स्टेटमेंट इज रिडक्शन इन प्रोविजन 600 आ रहा है, रिडक्शन इन प्रोविजन 600 आ रहा है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इफ इट इज़ अ रिडक्शन इन प्रोविजन, हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ये देखें, रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 600 विल बी एडेड एज रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 600 हम ग्रॉस प्रॉफिट में रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के तौर पे ऐड कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अफेक्ट होगा हमारे पास इसका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट है हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 40,000, इरिकवरेबल डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स का हमारे पास कैरी डाउन, ट्रेड रिसीवेबल्स का हमारे पास कैरी डाउन कितना है, ट्रेड रिसीवेबल्स का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैरी डाउन इज 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरी डाउन हमारे पास 2,000 आ रहा है, वो वहीं पे जाके हमारे पास लिख लेंगे यहाँ पे
कैरी डाउन प्रोविजन 2000 एंड इट इज सब्ट्रैक्टेड, तो हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे दैट विल बी 38,000, that will be 38,000. So if it is a reduction in provision, so it will be added in income. अगर हमारे पर रिडक्शन इन प्रोविजन आ रही है तो वो इनकम में ऐड होगी, ठीक है, और रिडक्शन इन प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, इंक्रीज द प्रोविजन। अगर कहता है जी इंक्रीज करनी है प्रोविजन, तो क्रिएट करने की प्रोविजन और इंक्रीज करने की प्रोविजन की ट्रांजैक्शंस और एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट यानी कि वो दो सेम ही है, ठीक है। अब वो कहता है जी इंक्रीज द प्रोविजन बाय, इंक्रीज द प्रोविजन बाय। जब वो क्वेश्चन में बाय का वर्ड यूज करेगा, इंक्रीज द प्रोविजन बाय, देन इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट फिगर, कि वो इनकम स्टेटमेंट की फिगर की बात कर रहा है, ठीक है। जब इंक्रीज इन प्रोविजन कहेगा जी, इन क्वेश्चन कहता है जी इंक्रीज द प्रोविजन बाय सर्टेन अमाउंट, तो फिर हम उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास उसने दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 40,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉट डाउन भी हमारे पास है विच इज़ 1500, और एडजस्टमेंट में बताया था जी इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय 500 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 5% से 500 से इंक्रीज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर क्वेश्चन में वो कहता है जी बाय, तो बाय का मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट फिगर, ही इज टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट फिगर। अब इसको हम अकाउंट में कैसे एडजस्ट करेंगे। ब्रॉड डाउन स्टेप नंबर 1, ब्रॉड डाउन ये स्टेप नंबर 1। कितना हमारे पास क्वेश्चन में ब्रॉड डाउन, जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन होगी दैट विल बी योर ब्रॉड डाउन, इट विल बी 1500, ठीक है। द प्रोविजन, फिर उसने कहा जी इंक्रीज द प्रोविजन बाय, बाय मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट फिगर, इंक्रीज करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा, तो अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ये से साइड आ जाएगी 2000, ये साइड आ जाएगी 2000 एंड कैरी डाउन विल बी 2000। सो व्हेन ही सेज इंक्रीज द प्रोविजन बाय जो भी फिगर है, तो वो इनकम स्टेटमेंट में लेके आएंगे, फिर हम उस फिगर को इनकम स्टेटमेंट में लेके आएंगे, बिकॉज वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि इंक्रीज हमारे पास या डिक्रीज की बात जो करेगा वो इनकम स्टेटमेंट, बाय का मतलब इनकम स्टेटमेंट, बाय मतलब इनकम स्टेटमेंट। अब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में क्या होगा, इंक्रीज हो रही है प्रोविजन, तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस है, तो ये 500 एक्सपेंस में चला जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस में चला जाएगा। एंड द इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आर 40,000, ट्रेड रिसीवेबल्स आर 40,000, इरिकवरेबल डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ नहीं है, और कैरी डाउन प्रोविजन, कैरी डाउन प्रोविजन हमारे पास कितनी है, ये देखिए यहाँ पे कैरी डाउन प्रोविजन 2000 आ रही है, तो हम अपने पास कैरी डाउन प्रोविजन जो है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एज 2000, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 38,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स बचेंगे, दे विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम ट्रांसफर कर देंगे। दिस वॉज इफ द क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्रीज द प्रोविजन बाय, जब वो बाय का वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब है वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स दिखेंगे, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉट डाउन होगा, फिर जितने अमाउंट से वो कहेगा जी इंक्रीज द प्रोविजन, वो हम उसको इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे, अकाउंट को बैलेंस करेंगे, और जो एक्सपेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस लिखेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड रिसीवेबल्स में से कैरी डाउन प्रोविजन माइनस कर देंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। इफ़ अ क्वेश्चन सेज इंक्रीज द प्रोविजन टू या डिक्रीज द प्रोविजन टू, ठीक है, इंक्रीज द प्रोविजन या डिक्रीज द प्रोविजन टू, जब वो टू की बात करता है, ठीक है, इंक्रीज द प्रोविजन या डिक्रीज द प्रोविजन टू, तो वो टू का मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट कैरी डाउन, ही इज टॉकिंग अबाउट कैरी डाउन, वो कैरी डाउन की बात कर रहा है। जब वो कहता है इंक्रीज द प्रोविजन बाय, अभी मैंने बताया कि इंक्रीज द प्रोविजन बाय, तो इट मीन्स वो इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अगर कहता है जी इंक्रीज द प्रोविजन टू, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट कैरी डाउन, वो कैरी डाउन के फिगर की बात कर रहा है, इंक्रीज द प्रोविजन टू।
वो कैरी डाउन की बात कर, कहता है जी इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय 2000। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं, ब्रॉड डाउन प्रोविजन हमारे पास है 1500। अब अकाउंट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाते हैं। ब्रॉड डाउन आ जाएगा हमारे पास 1500, ब्रॉड डाउन आ जाएगा हमारे पास 1500। एंड उसने कहा जी इंक्रीज द प्रोविजन टू, टू मीन्स कैरी डाउन की बात कर रहा है, 2000 तक लेके जानी है, तो इंक्रीज द प्रोविजन टू 2000। नाउ बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, 2000 हमारे पास है बिगर टोटल, वी राइट इट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लिखेंगे और अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 500 ओवर हेयर। तो ये इनकम स्टेटमेंट में स्टेप नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा। अब इनकम स्टेटमेंट में एक्सट्रैक्ट्स में देखते हैं हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में कितनी वैल्यू जा रही है। इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस चल लिख देंगे हमारे पास, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट विल बी 500, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट विल बी 500। हमने टी अकाउंट से जो इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू है वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दी। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्सट्रैक्ट्स देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास 40,000 ही चल रहे हैं, 40,000 इज ट्रेड रिसीवेबल्स, नो इरिकवरेबल डेट्स टू बी रिटन ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो कैरी डाउन है 2000 जो हमने कैलकुलेट किया, जो क्वेश्चन में बताया वह 2000, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 38,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में कहे कि जी इंक्रीज द प्रोविजन टू, टू मीन्स कैरी डाउन, तो वो कैरी डाउन की वैल्यू बता रहा है हमें। ब्रॉड डाउन क्वेश्चन में गिवन होगा, हम ब्रॉड डाउन लिखेंगे, कैरी डाउन जो उसने बताया वो लिखेंगे, अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों तरफ आ सकता है। तो अब हमारे पास इधर बैलेंस आ गया 500, तो इनकम स्टेटमेंट में इट विल बी एन एक्सपेंस 500, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 है, उसमें से प्रोविजन फॉर रिकवरेबल डेट्स का जो कैरी डाउन है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस आता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक प्रोविजन। हाउ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 40,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 1200 की गिवन है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 1200 का ब्रॉड डाउन गिवन है हमारे पास। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में होगी दैट विल बी योर ब्रॉड डाउन प्रोविजन। फिर क्वेश्चन सेज के जी क्रिएट अ प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर 400, हमने एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनानी है 400 की, एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, और 5% पे हमने प्रोविजन को मेंटेन करना है, एंड 5% पे हमने प्रोविजन को मेंटेन करना है। सो हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 40,000, पहले हम उसमें से माइनस करेंगे जो स्पेसिफिक प्रोविजन है। स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस कर दी, कितना आ गया हमारे पास 39,600 आ गया, 39,600 आ गया। तो सबसे पहले स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो परसेंटेज है वो लगा देंगे। कितनी आ गई 39,600 मल्टीप्लाई बाय 5%, it will be 1980, it will be 1980। स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस की पहले, जो बाकी बचे उसके ऊपर 5% प्रोविजन लगाई, और जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो इसमें दोबारा ऐड बैक कर दी, और जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो इसमें दोबारा ऐड बैक कर दी। तो 1980 प्लस 400 will be 2380, it will be 2380। ठीक है, दोबारा बताते हैं क्या। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 40,000 के, प्रोविजन का बैलेंस है हमारे पास 1200 ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन सेज क्रिएट अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर 400 एंड मेंटेन अ जनरल प्रोविजन ऑफ 5%। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 40,000, पहले उसमें से स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस करेंगे, स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ गया 39,600। इस पे हमने 5% की प्रोविजन लगाई तो आंसर आ गया 1980, और जो हमने स्पेसिफिक प्रोविजन बनाई थी वो हमने
इसी में ऐड बैक कर ली, इसमें ऐड बैक कर ली, तो टोटल प्रोविज़न हमारे पास बन गई 2380। तो स्पेसिफिक प्रोविज़न कैसे बनेगी, स्पेसिफिक प्लस जनरल, तो ये टोटल प्रोविज़न हमारे पास बन गई। अब ये हमारे पास इसको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में लेके आते हैं। ब्रॉड डाउन हमारे पास कितना है, ब्रॉड डाउन इज योर स्टेप नंबर 1, कितना ब्रॉड डाउन इज 1200। हम 1200 पहले ब्रॉड डाउन लिखेंगे, वी राइट 1200 एज ब्रॉड डाउन, स्टेप नंबर 1। कैरी डाउन, स्टेप नंबर 2, कितना कैरी डाउन निकाला, 2380, 2380 कैरी डाउन निकाला हमने। फिर अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, 2380, 2380, 2380, 2380 में से हम 1200 माइनस कर देंगे, जो हमारा ब्रॉड डाउन प्रोविजन है, 2380 माइनस 1200, इट विल बी 1180, 1180। अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो डिफरेंस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, एक्सपेंस आ गया 1180, इट इज़ एन एक्सपेंस। अब हम क्या करेंगे, इसका अफेक्ट देंगे इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट में। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस आ रहा है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज एन एक्सपेंस, इंक्रीज इन प्रोविजन, इट विल बी 1180, इट विल बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस, इट विल बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा, हम ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 40,000 के, और प्रोविजन फॉर इरिकवरेबल डेट्स का जो कैरी डाउन है वो हमारे पास आ रहा है 2380, 2380। तो हम 2380 यहाँ पे कैरी डाउन प्रोविजन में माइनस कर देंगे 40,000 माइनस 2380, 40,000 माइनस 2380, it will be 37620. So this is how you are going to calculate specific provision. Hope you understand, and please do follow my channel and subscribe.